Namaskar. Today, the 31st of October 2023, India is celebrating Rashtriya Ekata Divas, the National Unity Day. On this day, one of the India's greatest leaders, Sardar Vallabhbhai Patel, was born, and today is his birth anniversary. Sardar Patel was Free India's first Deputy Prime Minister and Home Minister. He was instrumental in the political integration of India. He merged more than 500 princely states, which were all loosely spread all over India, into a single united and strong country. And rightly so, he was called the Iron Man of India. Today is also the culmination of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, which started on the 12th of March 2021 to signify 75 years of India's independence, as well as Meri Mati Mera Desh campaign, which was started on 9th of August 2023 to pay tributes to those freedom fighters of India who had made the supreme sacrifice by laying down their lives for the cause of our independence. Millions of Indians, generations of Indians, they had participated in the freedom struggle, and we all must remember that because of their sacrifice, we are living in a very peaceful and stable country, that is Bharat today. And under the Meri Mati Mera Desh campaign, soil and rice grains were collected from every village and wards of urban areas. More than 600,000 villages and wards were covered, and soil and the rice grains were collected. All of them have been deposited yesterday in a giant receptacle called Amrit Kalash. Our Prime Minister, Sri Narendra Modi, administered 5 pledges, which is called Panch Pran, during his Independence Day address on 15th of August 2022. The first and foremost of those pledges was to strive to make India a fully developed nation by 2047. Each and every citizen of India should strive to contribute his or her full capacity, full ability to make India a fully developed nation and realize our Prime Minister's vision. I conclude by thanking and appreciating the children from the Indian community in Djibouti who have contributed short videos on Indian freedom fighters. I also appreciate their parents who have instilled great Indian values in their children. Jai Hind, Jai Bharat. राष्ट्रीय एकता एक ऐसी भावना जो लोगों में पैदा करती है सद्भावना। जब से हमने एकता को अपनाया, जब से हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाया। क्यों करते हो वैचारिक लड़ाई, एकता में है सबकी भलाई। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मैं 8 साल का हूँ। आज मैं आपको राष्ट्रीय एकता के बारे में कविता सुनाता हूँ। धर्म जाति के अंतर को तोड़ो, हाथ मिलाओ और भारत को जोड़ो। राष्ट्रीय एकता का बहुत बड़ा है प्रभाव, इससे उत्पन्न होता है देश में सद्भाव। अनेकता में एकता ही है भारत की पहचान। मुस्लिम, सिख और ईसाई है यहाँ की शान। सभी धर्म की अब एक ही पुकार, एकता के स्वप्न को करे साकार। एकता में बहुत बल है, इस राष्ट्र की हर समस्या का हल है। हाथ मिलाकर एक साथ चलेंगे, हम विश्व में एकता के मिसाल बनेंगे। तो बोलिए मेरे साथ,
जय हिंद, जय भारत। कौन से लखपत माटी देख दिमाग भगत का गुमाता, और निर्दोषन के खून से सानी उस माटी को भगत सिंह ने चुमाता। नमस्कार, मेरा नाम ध्वनि है और आज मैं आपको श्रीमती सरोजिनी नायडू के बारे में बताने जा रही हूँ। सरोजिनी नायडू एक भारतीय स्वतंत्रता क्रांतिकारी और कवयित्री थी। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। वो 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ कई राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया था। दांडी यात्रा में भी उनका बड़ा सहयोग रहा है। सरोजिनी नायडू को नाइट एंजल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको हमारा सत प्रणाम। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम मिशी पारेख है। आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं। मैं आज श्री वल्लभ भाई पटेल की कविता पढ़ूंगी। लोह पुरुष की ऐसी छवि ना देखी ना सोची कभी, आवाज में सी दहाड़ थी, हृदय में कोमलता की पुकार थी, एकता का स्वरूप जो इसने रचा। देश का मानचित्र पल भर में बदला, गरीबों का सरदार था वो, दुश्मनों के लिए लोहा था वो, आंधी की तरह बहता गया, ज्वालामुखी सा धधकता गया, बनकर गांधी का अहिंसा का शस्त्र, महकता गया विश्व में जैसे कोई ब्रह्मास्त्र। इतिहास के गलियारे खोजते हैं जिसे, ऐसे सरदार पटेल अब ना मिलते पूरे विश्व में। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है समायरा सन्नी और मैं आज हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। फ्रीडम फाइटर्स है वो लोग जिनने हमारे देश के फ्रीडम के लिए फाइट किया है। मैं आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करना चाहती हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था और उनके माताजी का नाम स्वरूप रानी था। उन्होंने एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की बुक भी लिखी थी और वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी डेथ 27 मई 1964 में हुआ था। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता जिसकी पहचान है, ये भारत देश मेरा महान है। कहीं धर्म रीति रिवाज बोलियां है, हमारी एकता से शत्रु परेशान है। अलग त्योहार और संस्कृति इसकी शान है, ये भारत देश मेरा महान है। जय हिंद। एवरीवन, अनेकता में एकता, राष्ट्रीय एकता है ऐसी भावना जो लोगों में पैदा करती है सद्भावना। जब हमने एकता को अपनाया, हमारे भारत देश की सोने की चिड़िया कहलाया। क्यों करते वैचाली लड़ाई, एकता में ही है सबकी भलाई। जब हमने एकता को अपनाया, हमारे भारत देश की सोने की चिड़िया कहलाया। जय हिंद। मेरी माटी मेरा देश, जय हिंद। मेरा माटी मेरा देश अभियान में हम अपने अमर शहीदों को याद करते हैं, उनके त्याग एवं बलिदान को याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका अदम्य साहस एवं पराक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया शक्ति प्रदान किया। ऐसे महानायक जिनके एक आह्वान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, पर देश के लाखों नौजवान एवं युवतियाँ प्राण न्यौछावर को तैयार होकर चल पड़े। ऐसे जननायक को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद। मेरी माटी मेरा देश अभियान चल रहा है। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों का आदर पूर्वक सम्मान करने का जो भारतीय राजदूतावास जिबूती को मौका मिला है, उससे हम सभी को
बहुत गर्व महसूस हो रहा है और हम सभी उन सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित भी हुए हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के गरिमामयी बलिदानों को याद करते हुए मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उनकी यह सहेली थी। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी थी कहानी ये, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई को शत शत प्रणाम एवं नमन। जय हिंद। हमारे लाला लाजपत राय भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए एक बड़े सिपाही ही नहीं थे, बल्कि उनका शिक्षा, समाज सुधार और आर्थिक उन्नति के जरिए राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान था। उनकी प्रेरणा से भगत सिंह सहित बहुत से देशभक्तों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। हमारा उनको सत सत नमन प्रणाम। भगत सिंह बहुत ही प्रसिद्ध हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उनका जन्म 1907 में पंजाब में हुआ था, जो हिस्सा अभी पाकिस्तान में है, और उन्होंने देश को आज़ादी दिलवाने के लिए फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट लड़ाई लड़ी, और 1931 में सिर्फ 23 साल की उम्र में अंग्रेज़ी सरकार ने उनको फांसी की सज़ा सुना दी और वो लाहौर की जेल में हंसते हंसते फांसी के झूले पर लटक गए। मेरी माटी मेरा देश अभिमान में है। हम अपने वीरों शहीदों के त्याग व बलिदान को याद करते हुए हमारे प्रिय महात्मा गांधी जी, जिनकी कोई भी व्याख्या हम जितनी भी करें वो बहुत कम है। हमारे महात्मा गांधी जी ने हमारे लिए, देश के लिए इतना कुछ किया कि शायद ही कोई करे इतना, और यही कारण है कि हमारा पूरा भारतवर्ष उन्हें याद करता है, और वो आज भी हमारे दिलों में हैं, हमारे पूरे कण कण पे बसे हुए हैं। और मैं उन्हीं के लिए करता हूँ कि भगवान करे हमारे ऐसे भारत में ऐसे महात्मा गांधी और पैदा हुए और हमारा देश उन्नति की ओर जाए। थैंक यू। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में भारतीय क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुई। ऐसी स्वतंत्रता सेनानी को मेरा सत सत नमन। जय हिंद। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत मैं नमन करते हुए खुदीराम बोस के लिए 2 शब्द कहूँगा। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश राज का विरोध किया था। उनका जन्म दिसंबर 1989 ईस्वी में बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। उन्हें 1908 ईस्वी में मात्र 18 वर्ष की अल्प आयु में मुजफ्फरपुर बम विस्फोट में शहर के तत्कालीन सत्र न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में फांसी दे दी गई थी। खुदीराम बोस आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हम सभी को हृदय से उनका नमन करना चाहिए। जय हिंद। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हम अपने वीर शहीदों के त्याग एवं बलिदान को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में कुछ बोलता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद जी 23 जुलाई 1906 को उनका जन्म हुआ था। वो एक बहुत ही महान इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे। वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए सेक्रीफाइस किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड ग्राउंड में जब पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था, कंटिन्यूस पुलिस के साथ उन्होंने
शूट आउट किया अपने आप को डिफेंड करने में, एंड फाइनली अपनी एक ट्रू प्लेस को याद रखते हुए उन्होंने प्लेस लिया हुआ था कि मैं कभी भी जिंदा जी गिरफ्तार नहीं होऊंगा। उस प्लेस को याद करते हुए उन्होंने, जब चारों तरफ से वो पुलिस ने उनको घेर लिया था, उन्होंने अपने आप को अपनी ही गन से शूट आउट कर लिया था। तो 27 फरवरी 1931 को उनकी मृत्यु हो गई थी। जय हिंद। मेरी माटी मेरा देश, इस अभियान के अंतर्गत आज मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको हम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जानते हैं, वो भारत के संविधान के पितामह कहलाते हैं। भारत का संविधान जो सबसे जटिल संविधानों में से एक है, उनके पितामह रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दलितों के हित में भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका। बहुत ही प्रयत्नशील स्वतंत्र सेनानी रहे हैं, बहुत ही प्रयत्नशील समाज सुधारक रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। इनको मरणोत्तर भारत रत्न दिया गया था इनके बहुत ही बड़े योगदान में भारत की स्वतंत्रता के। नमस्कार, जय हिंद।